Vishal, it is Hello. absolutely wonderful to be in conversation with you again. કેટલા વખત પછી આપણે વાત કરીએ છીએ, which I'm really glad I to do. think I think after 1.5 years. Yeah, definitely. I remember Yeah. lockdown में हमने किया था वो interview, but Yes. now look at you. You were inhuman. It's my debut on OTT platform. Amazing. Hmm. Well, tell me, Vishal, how was your experience of working on that show? Because it's a very interesting show about the unethical human trials uh, during Hmm. medical practices. विषय के बारे में कितनी जानकारी थी आपकी actually before doing this series? So this concept, I think the genre, it's a medical drama, it's a medical thriller. This is very, I mean, new and which is very rare in India. People have not seen so much of medical drama in India. And this was very unique concept, first of all. And the makers, Vipul sir and Hotstar team, I think so, they were planning to do a film on this genre, but they wanted it to explain in detail, so they decided to make a series of 10 episodes, and they gave the writing part to Moses sir, who is the director also of the show and is all writer also. So Moses sir and Ishani Banerjee has written all the episodes, and I too, when I read the script, I read personally my part a lot, and I fell in love with the show, and especially I loved my character. It was so relatable. Also, it's he's a teenager. Mangu is a Hmm. teenager. He's a survivor, and I got to know that Shifali ma'am and Kirti ma'am are already part of the show, and Vipul sir is so experienced, well known director of industry, Oh, and he has definitely. given a lot of big films to Bollywood. And I thought that this is the complete package, and if I can add something, if I can invest something in this project, then there won't be anything better than this. So મને એમ લાગ્યું આ કરવું જ જોઈએ, તો कर yes, लेना. full yes. It's wonderful. It was nice. So I guess set ऊपर तो काफी चर्चा थी हसे गुजराती में. I'm pretty sure. Like you must have spoken with him a lot in Gujarati. Yes. Vipul sir talks in Gujarati only. Vipul sir हाँ. and the whole team of Sunshine Pictures. Ashin sir is the who's the co-producer of the show. They talk in Gujarati. Even in direction team and costume department, there are a lot of Gujarati people there. So I felt like it's my home only. So जो मर्दानी में हूँ गए तो एक महीना आई वॉज इन कोटा, वी वर शूटिंग इन कोटा इन राजस्थान. Yeah. तो वहां पे ऐसा था कि कोई कोई गुजराती बोलते ही नहीं थे वहां पे. सभी कोई अलग लैंग्वेज बोली जाती. मैं एक एक महीने पूरा अपनी लैंग्वेज को मिस कर रहा Right. Of course. Yeah. So how again challenging was it for you, Vishal? Because you were playing a very emotionally charged character who goes through any length to provide for his family. तो वो था. कितना difficult था आपके लिए? It was really difficult to get the breakthrough of the character Mangu, because what happened was, you will see a little similarity in costume, the look, the appearance of Mangu and Sunny. So, and what happens is my character, I mean, my costume, my makeup, my look gives me a lot of character. It gives me something. When I wear my costume, I feel like Mangu, I feel like Sunny. So this was something very challenging, because the look is little similar to what I had in Mardani. Hmm. तो ऐसा हो गया कि एक्शन बोलते ही मुझे कुछ समय तक ऐसा लगता था कि क्या मैं अभी सनी परफॉर्म करने वाला हूँ या मैं अभी मंगू परफॉर्म करने वाला हूँ. और आई यूज टू टेक लिटिल टाइम टू थिंक ट्वाइस एंड go for the take before every scene. But and also what helped me a lot was cinematographer एंड आर्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि वो एक माहौल ऐसा क्रिएट करते हैं आपके सामने कि आप जिस वर्ल्ड में हो आप वो फील करने लगते हो. एंड देन इट वाज माय इंटरनल प्रोसेस. So before every scene, especially Moses sir, he is the writer of the show also, so he used to just come and give you brief or maybe sometimes detailed explanation about the scene. And he used to give us the subtext, I mean, what is going on behind Mangu's mind at this point of time. And we used to just process it and instill the information, and we used to just, I mean, go for the take. So this was it.
But I think the wait for you and between Mardani 2 के बाद ये जो Hmm. human था, I think it was Hmm. quite a long wait for you as well. Yeah. What was that wait, do you think? Do you think was it because lack of opportunity, or do you think you were waiting for the right opportunity, or do you think that it was just something else only? What was that reason? Uh, so the main reason was after my film release, Mardani 2, in 2 to 3 months, I used to get a lot of calls and a lot of opportunity. I won't lie about that. But I was just figuring out that what should be my next step. I was little confused also. And it is before lockdown ka time. तो लॉकडाउन के टाइम के पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म का कितना रीच होने वाला ये मैं जानता नहीं था एंड ऑल्सो माय मैनेजर यूज्ड टू टेल मी दैट टाइम माय मैनेजर वाज स्नेहा एंड शी टोल्ड मी दैट कि विशाल यू डोंट नो बट ओटीटी का ग्रोथ बहुत हो गया है और बहुत अच्छे एक्टर्स वहां पे काम करते हैं और मैं मर्दानी को लेकर बहुत सोच रहा था कि अभी मर्दानी में अगर मुझे लकीली इतना अच्छा ब्रेक मिला है तो सेकंड स्टेप मेरा क्या होना चाहिए and then what happened I also got award for the for best debut Oh yes, yes, फिर yes. या तो वो समय मेरे लिए बहुत ऐसा था कि जिस समय मुझे और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती और ज्यादा काम मिलता बट अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन हो गया और 1 साल सारा काम बंद हो गया अब Mhm. 1 साल काम बंद हो गया आई थिंक 11-12 महीने के बाद मुझे दूसरे प्रोजेक्ट के लिए काम आने लगा क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद हो गया था और आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री ही ऐसी थी जो बहुत लास्ट में शुरू हुई बहुत लेट शुरू हुई और फिर हमने शूट करना शुरू किया तो फॉर 11 to 12 months तो आई वाज जस्ट सिटिंग एट होम आई वाज डूइंग नथिंग आई वाज जस्ट प्रिपेयरिंग माई सेल्फ आई वाज डूइंग व्हाट आई यूज्ड टू लाइक आई ऑल्सो started doing gym and I was doing a lot of productive things which I wasn't used to do and then it then it, because I read one whole book because I am not a reader मेरे Of लिए एक course. पूरी बुक पढ़ना भी बहुत बड़ी बात थी तो मैंने बुक पढ़ी मैंने Wow. for gaining weight is big challenge for me I gained Hmm. 6 to 7 kg of weight फिर ये सारी चीजें हुई मेरे लाइफ में एंड देन आई थिंक लास्ट लॉकडाउन के दिसंबर के टाइम पे 2020 में आई गॉट कॉल फ्रॉम विपुल सर्स टीम एंड दे आस्क्ड मी to come to office and read the script I read the script and then धीरे धीरे इसका शूट शुरू हुआ फिर वापस लॉकडाउन हो गया एंड देन वापस शूट शुरू किया तो ये बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया आई थिंक नॉट ओनली फॉर मी बट आई थिंक फॉर द होल इंडस्ट्री क्योंकि इवन वायरएफ में हमें एवरीडे कुछ ना कुछ काम रिलेटेड जाना ही होता था बट अभी भी 100% ओपन नहीं हुआ है सब लोग वर्क फ्रॉम होम अभी भी काफी सारे लोग कर रहे हैं तो ये टाइम इसीलिए बहुत ज्यादा दिस वाज द गैप बिकॉज ऑफ दिस दीज ऑल रीजन You know, Vishal, I think जब आप तय कर रहे थे कि मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ, I think when मर्दानी happened for you, उस वक्त आपकी जो expectations क्या थी? You know, because I'm sure it must have elevated your expectations at some point, right? In terms of like, you know, because obviously you've done such a big film, so I'm sure the stakes must have been higher for you, ना कि मुझे अब ये achieve करना है, वो achieve करना है. तो वो expectations या stakes क्या था आपकी जिंदगी में उस वक्त? I don't wanted to achieve anything. I just wanted to satisfy. I really wanted to just satisfy Shanu ma'am's expectation, who is the casting director of YRF. I wanted to satisfy the demand of Gopi sir and then Adi sir. अगर ये तीनों लोग मेरे काम से खुश है तो मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था और मुझे बस ये ध्यान देना था कि आई गिव माई 100%. आई डोंट वांट टू बी इन रिग्रेट कि यार मैं यहाँ पे और ज्यादा अच्छा कर सकता था या मैं और ज्यादा काम कर सकता था इससे ज्यादा मैंने कुछ सोचा नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट क्योंकि आई फील कि ये सारी चीजें इट्स नॉट इन योर कंट्रोल एंड आई शुड नेवर थिंक अबाउट व्हाट इज नॉट इन योर कंट्रोल तो एंड आई एम नॉट अ पर्सन जो बहुत ज्यादा गोल सेट करता है आई यूज टू डू इट बिफोर जब मैं नया नया इंडस्ट्री में आया था जब मैं टेलीविजन करता था तो शुरू के कुछ साल मैं भी ऐसे एक्सपेक्टेशन लेके बैठता था मुझे कुछ बनना है but then slowly I realized these all things are not in your control just do everything just give your 100% live in the moment and you will get what you want and I think you will get more than what you want if you just live in the moment and don't expect anything
So this is the formula I mean execute हाँ, also these days. Yeah, yeah. absolutely, absolutely. I feel like there's a sense of confidence. आपके एक confidence आया है और वो आप feel कर You रहे हो, are right? नो यू आर वेरी राइट एक्चुअली ये बात हुई कि धीरे धीरे पहले तो मुझ में कॉन्फिडेंस था नहीं कि मैं लोगों के सामने क्या बात करूंगा कैसे बात करूंगा तो आई यूज टू प्रिफर टॉकिंग इन हिंदी ओनली आई एम नॉट दैट बैड ऑल्सो इन इंग्लिश बट आई एम नॉट दैट स्मार्ट आई एम नॉट दैट फ्लुएंट इन इंग्लिश अभी भी मैं बहुत सारी मिस्टेक करता हूँ बट ह्यूमन के प्रमोशन के टाइम पे मैंने ऐसा सोच लिया था कि मुझे जो कंफर्टेबल लगेगा और मैं कुछ नया सीखने की कोशिश करूंगा एंड आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस ये ज्यादा से ज्यादा क्या होगा मेरे पे मीम बन जाएंगे कुछ लोग हंसेंगे मुझ पे उससे ज्यादा हाँ, तो कुछ नहीं होगा ना तो एटलीस्ट लेट मी ट्राई जो भी टूटा फूटा बोल पाता वो तो बोलूं तो मैं वर्स्ट केस के लिए प्रिपेयर हो गया और मैं कोशिश करता हूँ बस मैं ऐसा भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं क्योंकि मेरी पढ़ाई गुजराती मीडियम स्कूल में हुई है और मैं ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आता जहाँ पे घर पे भी इंग्लिश में बात की जाती है या रीडिंग और बाकी सारे न्यूज़पेपर पढ़ना ये सारी चीजें हमारे घर पे भी पहले कभी थी नहीं तो ये right. सारी आदतें ये सब अभी मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा और अभी मैं धीरे धीरे ये सारी चीजें करने लगा तो आई एम जस्ट लर्निंग मैं अपने आप से ये इंटरव्यू कर रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ सीखूंगा मैं 2 लाइन इंग्लिश में बोल के मैं कुछ कुछ सीख जाऊंगा या कुछ मिस्टेक कर लूंगा तो मैं दूसरी चीजों की परवाह किए बिना अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ That is so wonderful. I think that's absolutely wonderful to hear. But I think जब मैंने human देखी थी ना, आपके जो emotions थे विशाल, I'm absolutely mesmerized because how do you emote so well on screen? मतलब वो कैसे आप करते हो? क्योंकि वो जो एक सीन था आपके और आपके जो ऑन स्क्रीन सिस्टर के साथ, जिस तरह यस से आप यस माफी मांगते हो उनसे, यस वो तो what reference point do you have as an actor to bring out those emotions on screen and present it in a way which is um very organic and very real? I just think about कि how Mangu will be feeling at this point of moment. और दूसरा मैं बहुत सारे फॉर्मूला ऐसे होते हैं जो हर एक विच इज वेरी सब्जेक्टिव ऑल्सो हाँ हर बार एक फॉर्मूला आपका यूज नहीं होता इस सीन के पहले आधे 1 घंटे पहले हम बहुत शांत हो जाते हैं इवन आपका क्रू आपको बहुत सपोर्ट करता है they'll बी वेरी क्वाइट they'll cooperate with you और डायरेक्टर्स आपको हर एक बार आके हर एक मोमेंट पे आपको समझाएंगे और जब ऐसे कुछ सीन होते हैं तो बहुत जो जहाँ पे आपकी फिजिकल और मेंटल और फीलिंग वाली एनर्जी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है तो वहां पे हम अपनी अपनी पूरे फोकस को उस सीन में लगा देते हैं एंड वी ट्राई टू आई मीन फाइंड सम वेपन फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बहन के साथ मुझे माफी मांगने का सीन है तो मैं ऐसी कुछ चीजें याद करूंगा जहाँ पे मैंने अपनी बहन से माफी मांगी हो और दूसरी बात आई व्हाट आई फील इट इज नॉट ओनली मी Hmm. यू मैंने गौर गोपाल दास सर के आई मीन गुरु है एक वो स्पिरिचुअल स्पीकर भी है उन्होंने ही आई थिंक कहा था कि देयर इज सम एक्स फैक्टर इन यू विच इज नॉट योर एफर्ट तो ये कभी कभी मैं तो अपना परफॉर्म करने के बाद आ जाता हूँ और एक्शन और कट के बीच में क्या हुआ वो मैं खुद टीवी पर देख के या शो में देख के बहुत बहुत फैसिनेट हो जाता हूँ कि ये मैंने कैसे कर लिया बहुत बहुत सरप्राइज रह जाता हूँ कि ये मैंने कैसे किया बट दिस इज नॉट ये सारा का सारा मेरा एफर्ट नहीं है ये कुछ एक्स फैक्टर भगवान ने मुझे दिया है जो आई थिंक मेरी क्वालिटी है और लोगों को पसंद आती है मैं Absolutely. अपने 100% देता हूँ एंड इट इज मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग इट इज म्यूजिक ऑल्सो डायरेक्शन ऑल्सो सिनेमेटोग्राफी ऑल्सो आर्ट डिपार्टमेंट डायलॉग्स और सामने वाले एक्टर के रिएक्शन जो आप जिस सीन के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रणाली जिन्होंने मेरी बहन का कैरेक्टर प्ले किया है मीना का कैरेक्टर उन्होंने इतना अच्छा मुझे मुझे एक्शन का रिएक्शन दिया और उनके एक्शन पे मैंने कुछ रिएक्ट किया तो ये सारा एक मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग है ये सिर्फ सिर्फ मेरा परफॉर्मेंस नहीं है मैं अकेला इसकी क्रेडिट नहीं ले सकता Absolutely. No, that's so true. Actually, हमारे बस के बाहर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते और एक दिव्य शक्ति actually in a way is always हंड्रेड present परसेंट with us. 100% वी आर ब्लेस्ड कि मुझे अपने आप को
मुझे अपने आप पे बहुत गर्व महसूस होता है और बहुत खुशी होती है मुझे कि मैं एक्टर बना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको डिग्री पाने के बाद आप सीए, सीएस, या मैं उनको छोटा नहीं कह रहा हूँ और मैं उनके काम को ये नहीं कह रहा हूँ, पर बहुत सारी चीजें पढ़ाई के बाद आपको डिग्री मिल जाती है, बट एक्टर की डिग्री आपको कहीं नहीं मिलती। संजय एब्सोल्युटली। मिश्रा सर आई थिंक कहते हैं, संजय मिश्रा सर कहते हैं आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने ही कहा था, मैं ऐसे इंटरव्यू से बहुत सारी चीजें देख के सुनता हूँ और सीखता हूँ कि आपको एक्टर आप खुद नहीं बनाते, आपको आपको ऑडियंस बनाती है। मैं अगर आके कहूँ हाय आई एम एन एक्टर विशाल नरेश प्रीति जेठवा, तो नहीं लगेगा, बट आप हम्म, मुझे कहोगे कि विशाल आप कितने अच्छा एक्टर हो या आपने अच्छा काम किया है, तब मैं एक्टर बनता हूँ। तो ये एक्टर बनना आई थिंक ये ब्लेसिंग है। बहुत हम्म, कम लोगों को आर्ट की समझ होती है, और एक्चुअली आर्ट का सेंस बहुत कम लोगों को होता है। वो हमें कुछ आई थिंक, समझ लो, ऐसे वर्ड में, बहुत बड़े वर्ड में कहूँ तो पावर जैसी चीज भगवान ने दे दी है और एक हम्म। ब्लेसिंग दी है कि आप ये कला को प्रेजेंट करने के लिए हम आपको चूज कर रहे हैं, तो थैंक्स टू यूनिवर्स। Hmm. So beautiful to hear. So beautiful. And that's what I love about you, Vishal, is that you're just so, oh, you're just so adorable. Okay, right. थैंक यू। I think also, art, आपने आर्ट के बारे में बात की. लेकिन जी। अक्सर देखा जाए ना, I feel like सिनेमा एक ऐसा वक्त और एक ऐसे दौर से गुजर रहा है कि कॉमर्स ज्यादा बात कर रहा है अभी. It's all हम्म। about the profits. It's all about the box हम्म। office returns. And I do think because of COVID and because of the pandemic, क्योंकि अब वो चीजें काफी अनसर्टन हो चुकी है, तो लोग मतलब कोशिश कर रहे हैं कि जितना पैसा बना सके बना लो, नहीं तो फिर वापस चांस नहीं मिलेगा. I feel like it's got this sort of a push. But how do you as an actor, Vishal, find that balance, और वो फाइन ट्यूनिंग कैसे आप ढूंढते हो कॉमर्स और आर्ट के बीच में as an actor? हाँ, तो इट इट इज ऑल्सो वेरी सब्जेक्टिव, और इट इज अबाउट योर प्रायोरिटी कि आप क्या चीज पसंद करते हो। काफी सारे एक्टर्स है, बहुत बड़े नामचीन एक्टर्स है, जो क्लियरली कहते हैं कि अब मैं सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ पैसे बनाने हैं। और कुछ एक्टर्स ऐसे हैं जो उसका बैलेंस ढूंढते हैं, और कहीं ना कहीं भले ही ये एक आर्टिस्टिक इंडस्ट्री है, यहाँ पे आर्ट के बारे में बात होती है, बट इसका मतलब ये जरा भी नहीं है कि आप आर्ट के लिए आप अपनी पर्सनल लाइफ में आपको जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी की रिक्वायरमेंट है उसको भूल जाओ। तो मैं हमेशा, अगर मेरे पास इनफ बैलेंस है अपने बैंक अकाउंट में, इनफ बैलेंस है, तो फिर मैं चॉइस करने की बात शुरू करता हूँ। पर जब मेरे पास इनफ बैलेंस नहीं है, तो मैं ऑनेस्टली और एकदम ट्रांसपेरेंटली ये सबके सामने कहने की हिम्मत रखता हूँ कि नहीं, मुझे कभी कभी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए भी काम करना पड़ता है। जी. और मैंने ये टेलीविजन टाइम में जब ऐसा समय था तो मैंने किया भी है। मुझे कुछ काम ऐसे थे जो मुझे मुझे पसंद नहीं थे, और जिसके लिए मैं 100% श्योर नहीं था, बट क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी कि मुझे काम करना पड़ा, मैंने किया। और आज हम्म, मैं थोड़ा बहुत स्टेबल हो गया हूँ, और मैं अपने अपने चॉइस के हिसाब से काम काम करता हूँ। तो अगर आपके पास इनफ अमाउंट है, अगर आपके पास उतना पेशेंस है कि आप रुक सकते हैं, आप 2 साल 3 साल जितना भी आप सरवाइव कर सकते हैं, तो मेरी ये फ्री फंड में आप लोगों को एडवाइस है कि आप वेट करो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास उतना अमाउंट नहीं है, तो जो भी काम आए करो, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ आई डोंट थिंक सो होनी चाहिए। बिल्कुल. क्योंकि बिल्कुल. आपकी खुद की अगर खुशी नहीं है, आप घर पे एवरीडे आपके घर पे फाइट हो रही है बिकॉज ऑफ बजट और इन सारी चीजों की वजह से, तो फिर आप क्यों क्यों ये सारी चीजें कर रहे हो जब आप खुद ही खुश नहीं हो। तो Very आई true. थिंक प्रोफेशनल लाइफ से पहला, आई थिंक इट इज 51% ऑफ माई पर्सनल लाइफ, एंड देन 49 ऑफ माई प्रोफेशनल Absolutely. And Vishal, लाइफ। actually, I feel like it's so important to reinvent oneself. I think क्योंकि वक्त बदल रहा है, सिनेमा का जो एक लैंडस्केप है वो इतना तेजी करेक्ट। से बदल रहा है, हमें भी एक्चुअली even as journalists we have to also adapt to the change. करेक्ट। For you as an actor, because obviously आपका जो big break था मर्दानी, वो एक ऐसे कैरेक्टर का था वो जो सोसाइटी के सरफेस पे रहता है, एक फ्रिंजेस ऑफ सोसाइटी पे है. एंड अगेन आई थिंक योर कैरेक्टर इन ह्यूमन आल्सो, मंगू, he also is on the fringes of society. So do you also feel like you need to also, I guess,
do roles which are quite different and dynamic to the ones that you've done? And is that something which you will be pursuing in the future? आई थिंक सभी एक्टर की यही एक एक्सपेक्टेशन होती है कि वो हर बार वेराइटीज ऑफ कैरेक्टर करे, एंड सेम इन माय केस आल्सो, आई आल्सो फील कि मुझे हर बार ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि जहां पे मैं डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर कर सकूं, बट आई विल नॉट लिमिट माई सेल्फ देयर, आई विल आल्सो डू द रोल्स जहां पे जो रोल्स लोग मुझे जिस रोल में लोग मुझे देखना पसंद करते हैं। क्योंकि आप आप काम करते हो उसका कहीं ना कहीं एक रीजन वो भी है कि आप पब्लिक के लिए भी काम कर रहे हो, आपको वो भी दिखाना है, आपको अपने आर्ट को सेटिस्फाई करना है, अपने आप को सेटिस्फाई करना है अपने काम से, बट साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप वो भी अगर करते रहो जिसमें आपको लोग देखना पसंद करते हैं, तो वो एक बहुत ही परफेक्ट बैलेंस बन जाएगा। तो दिस इज व्हाट आई फील, बट आई ऑलवेज ट्राई कि मैं नया एक्सपेरिमेंट करूं, और मुझे इस चीज की कुछ कुछ इनसिक्योरिटी भी होती है कि क्या मतलब मुझे इनसिक्योरिटी व्हेन आई से मैं एक फियर कह सकता हूँ इसे, मुझे हमेशा डर रहता है कि मैं कुछ नया करने के चक्कर में कुछ ऐसा ना कर दूं जहां पे लोग मुझे एक्सेप्ट ही ना कर सके। Right. मतलब हाँ, मैं ट्राई करूंगा नई चीज, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि क्योंकि लोगों के साथ साथ मैं अपने आप को भी देखूंगा, मुझे अपना काम पसंद आना चाहिए, मैं कुछ अपने आप को एज एन एक्टर ग्रो करूँ, एज ए पर्सन ग्रो करूँ, ऐसा कुछ काम करूँ, बट मैं साथ में साथ वो भी बैलेंस करना चाहता हूँ कि लोग मुझे किस में देखना है, क्योंकि मुझे अब तक बहुत सारे काफी समय से मुझे लोगों ने नेगेटिव रोल में एक्सेप्ट किया है, और उनको मेरा काम पसंद आया, बट ह्यूमन वॉज एक्सपेरिमेंट फॉर मी, ह्यूमन वॉज एक्सपेरिमेंट फॉर द मेकर्स ऑल्सो, कि वो लोग ने मुझे ऐसे रोल के लिए कास्ट किया जो मर्दानी से बहुत अलग था, और जिस पे खरा उतर गया मैं, तो ये एक्सपेरिमेंट मेरा सक्सेस हो गया, शायद आगे ऐसा हो सकता है कि ना भी हो। I was gonna say, Yeah. yeah, definitely. I mean, अपने experiment की बात की, it was literally an experiment for you, actually. This is, yes, it is experiment for the casting directors also, because Yeah. it is very easy to cast me for negative role, it is very easy, negative character अरे विशाल को दे दो वो कर लेगा, हाँ, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि लोगों के पास वो कॉन्फिडेंस आ गया है, क्योंकि एक फिल्म में मैंने ऐसा काम कर लिया, बट मैं तो उन लोगों की वेट बहुत ज्यादा करता हूँ, और उन लोगों को मैं एज मतलब बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उनके इस डिसीजन को, कि वो ऐसे एक्टर्स को दूसरे कैरेक्टर के लिए ट्राई करना भी पसंद करते हैं। Okay. और उसी के बाद समझ में आया, आई थिंक ह्यूमन के बाद ही समझ में आया कि ये विशाल को इस नजर से भी देखा जा सकता है यार। I can, I can actually see you do a romantic hero role. I really can see it. I'm serious. Like I genuinely feel कि आप बस सिर्फ Yes. negative ही नहीं कर सकते हो. In fact, अगर देखा जाए हमारे कितने सारे legends हैं actually. For example, शाहरुख खान साहब, उन्होंने उनकी जो करियर की जो क्रक्स थी, वो जो एक टेक ऑफ वाली जो पीरियड था, they were mostly negative anti-hero roles. And then now look at him. Now he's noticed as the king of romance. So it just goes to Correct. show, isn't it, that sometimes it is about showing that potential and being recognized for that, Correct. And it's all about your destiny also. ये इतना we cannot plan each and everything. We should not plan each and everything कि मैं यही करूंगा वो ही करूंगा। मुझे तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं इस जर्नी पे आ जाऊंगा, कि आज आपके साथ बात करूंगा, और ऐसे बड़े जर्नलिस्ट या इतने सारे बड़े चैनल्स के लोग मेरी बात सुनने में इंटरेस्ट रखेंगे, ये सब मैं सोच के नहीं आया था। ये सारी चीजें तो मुझे अपने काम के बेसिस पे मिली, तो ये सारी चीजें कोई प्लानिंग नहीं थी, और आई डोंट थिंक सो कि इतनी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करके आप अपने अकॉर्डिंग ही सब कुछ करते हो। आप Yeah. बस अपना बेस्ट देते हो, उस मोमेंट पे आप जो बेस्ट कर सकते हो, कभी कभार तो आप अपना बेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। True. वो भी आपके सिचुएशन में नहीं है। देयर आर लिमिटेशंस अबाउट योर बजट इन एवरी प्रोजेक्ट, बजट का लिमिटेशन है, टाइम पीरियड का लिमिटेशन है, एक्टर्स के डेट का लिमिटेशन है, आपको डे लाइट में शूट करना है उस चीज का लिमिटेशन है, तो आप चाह के अपना 100% नहीं दे पाते। कभी कभी आप कॉम्प्रोमाइज कर जाते हो अपने काम में, कभी कभी हम सोचते हैं कि एडिट में देख लेंगे, तो Scary, actually. ये You know सारी what this चीजें, is? yeah, it is very scary. Because I just think to myself, like, if I was an actor, और मुझे एक, because as it is, Vishal, I think काम मिलना तो बहुत ही मुश्किल होता है. उसके बाद एक you know, it's never certain कि आप prominently दिखोगे फिल्म में, 100%. I think that's the Yes. scary part as well.
तो हाउ डू यू डील विद ऑल दिस इनसिक्योरिटीज? बिकॉज आपने मेंशन किया स्पिरिचुअलिटी के बारे में, हमने बात की थी, तो क्या वो स्पिरिचुअलिटी एस्पेक्ट आपको बहुत मदद करती है, स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग with a very cutthroat industry like Bollywood, unlike the film industry? नो नो, एकदम बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है आपका। मैं ओरिजिनली ही ऐसा पर्सन था, कुछ संस्कार मैं अपने आप के ऑलरेडी लेके आया था। एंड मेरे गुरु शोएब खान सर ने मुझे फर्स्ट डे एक्टिंग क्लास में यही सारी चीजें सिखाई थी। जो क्लास मुझे पहले बहुत बोरिंग लगता था, आज मुझे पता चलता है कि वो क्लास ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए फर्स्ट डे। क्योंकि जब मैं फर्स्ट डे क्लास में गया था, तब मैं भी यही सोच के गया था कि फर्स्ट डे मुझे अमिताभ बच्चन वाले डायलॉग मिल जाएंगे, शाहरुख खान वाले लाइंस मिल जाएंगे, बाहर जाते पेपराज़ी शुरू हो जाएगी। बट ऐसा ये रियलिटी नहीं है, ये Right. रियलिटी नहीं है। और इस छोटी उम्र में, आई मीन 27, मतलब 27 ईयर्स का हूं मैं। इतने साल में मैंने 2010 में अपने करियर की शुरुआत की, और तब से लेकर मुझे ना बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो गए। मैंने कैमियोस किए बहुत, मैंने पर डे 1000 रुपीज में काम किया। मैंने बहुत कैमियोस किए, और मैंने कुछ ऐसे शोज किए जहाँ पे मुझे बहुत नाम मिल गया, कुछ ऐसे शोज किए जिसे किसी ने देखा ही नहीं। मैंने बहुत बड़े बड़े काम करने के बाद भी 6 6 महीने, 7 7 महीने, या कभी कभी एक एक साल तक मेरे पास काम नहीं था। मैं रोया, मैंने सेल्फ डाउट किया। ये सारी चीजें मेरे लाइफ में हुई, और इन सारे एक्सपीरियंस से और एज अ पर्सन जो मेरी क्वालिटीज है, उन सारी चीजों से मैं ये सीख गया कि ये लाइफ में कुछ भी सर्टेन नहीं है। कुछ भी आप प्लान करके करोगे तो आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा, और सब कुछ आपके फेवर में हो ऐसा जरा भी जरूरी नहीं है। तो बिल्कुल। मैंने ये सारी चीजें डेस्टिनी पे छोड़ दी है। बट इसका कोई भी मतलब ये नहीं है और कि मैं अपने आप का ग्रोथ रोकता हूँ। मैं अपने आप को हर एक बार ग्रो करने की कोशिश करता हूँ, या एटलीस्ट अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। और ये इंडस्ट्री सर्टन नहीं है, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है हमारी लाइफ ही सर्टन नहीं है। और कोविड सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, आई थिंक सभी लोगों को ये रियलाइज करवाने के लिए कि आपकी बेसिक नीड बहुत ज्यादा कम है, और लाइफ कितनी अनसर्टन है। कुछ भी कभी भी एक सेकंड के बाद, अभी हमें नहीं पता था कि कभी कुछ दिनों, मुझे कोविड हो गया था पहले, हमें नहीं हाँ। पता था कि ऐसा कैसे हो जाएगा। कुछ लोग हमारे क्लोज, हमारे परिवार के इतने क्लोज रिलेशन रिलेटिव्स है, उन लोगों का कॉल आया था और हमें कुछ बुरी खबरें सुनने मिली, जिनके साथ हमने 2 से 3 दिन पहले फोन पे बात की थी। अब ये सारी चीजें इतनी अनसर्टन है, तो आई थिंक कोविड से तो यही चीज आई थिंक हम सभी लोगों को सीखने मिली है कि लाइफ इज सो अनसर्टन। It's so तो true. इट इज नॉट ओनली आवर इंडस्ट्री विच इज अनसर्टन। हर एक जगह पे ये चीज देखने मिलती है। Absolutely, हम्म, absolutely. But I think it is that willpower, and I think that strong, positive mental health, which I think really does help uh, one to really make the most out of their life and their careers. And I think ये जो आपने जो बात की वो बहुत ही उम्दा बात की आपने, क्योंकि हम दोनों गुजराती हैं, और as आप जानते हैं कि गुजराती सिनेमा बहुत बढ़िया काम कर रहा है. In fact, it's हाँ। heading in such a great direction at the moment, and it makes me really proud to see that. हम्म, Um, हम्म। do you have any plans to work in Gujarati cinema also? वाई नॉट, वाई नॉट। एक बीच में गुजराती प्रोजेक्ट के लिए मुझे अप्रोच भी किया गया था, और कुछ रीजंस के वजह से वो वर्कआउट नहीं हुआ। बट मैं टोटली इंटरेस्टेड था वो काम करने के लिए, और उतना ही दिल से मैं उसको करना चाहता था जितना मैं बॉलीवुड में काम करना चाहता हूँ, हिंदी सिनेमा में काम करता हूँ। एंड बीइंग अ गुजराती, मेरी मेरी पर्सनली भी ये इच्छा है कि मैं कुछ गुजराती फिल्म में ऐसा काम करूँ जो शायद दूसरे लोगों का गुजराती इंडस्ट्री को देखने का जो नजरिया है वो बदले, और ये सिर्फ एक सीमित लोगों के बीच में ना रह जाए, सिर्फ गुजराती लोगों के बीच में ना रह जाए, और ये एक बाहर की ऑडियंस को भी पता चले। और गुजराती फोक भी बहुत अनएक्सप्लोर्ड लगता है मुझे मुझे ऐसा लगता है बहुत अनएक्सप्लोर्ड है, वो भी लोगों के सामने आए। जैसे मराठी इंडस्ट्री को बहुत नाम मिलता है क्योंकि उनके फिल्म्स भी बहुत अमेजिंग होते हैं। साउथ इंडस्ट्री धीरे धीरे बॉलीवुड में बहुत अच्छा काम कर रही है, पुष्पा, बाहुबली,
धीरे धीरे ये सारे तरीकों के फिल्म में साउथ इंडस्ट्री की कितने सारे रीमेक्स बनते हैं। तो वैसे ही धीरे धीरे आई थिंक कि गुजराती में हेलारो जो फिल्म आई थी, छेल्लो दिवस आई थी, इन सारी फिल्मों ने धीरे धीरे काफी सारा बदलाव लाया है गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में। तो आई पर्सनली विश एंड आई होप कि मैं भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट के साथ गुजराती फिल्म भी करूं जो गुजराती ऑडियंस तक, और जो लोग मुझे अलग रूप में देखना चाहते हैं वो भी देख सके गुजराती बोलते हुए। Yeah, I would, actually, film I thi Chal Jeevi Laye. Actually, I'm not sure if you've हाँ, heard about it, but that was a I've heard very about it. that was a very Yeah. interesting. I would love to see you do such a role where you're playing like a businessman who's very caught up with life. I want to see you explore that. I think it would be very interesting to see how you would perform in that. Businessman, I am playing role of 17-18 year boy, and how will I play businessman right now? Exactly, even reason why you should. I look 10 years younger than my age. I am 27. I look like 17, 18, max 20, 22. उससे ज्यादा तो बहुत मुश्किल है. Interesting. Well, hopefully it'll be interesting to see as time goes on. कैसे मतलब how things change, how the transformations happen, and I'm sure as आप तो mature हो ही, Vishal, and I think that's what's important क्योंकि आप में एक maturity है emotional वाली. I think that must also help. Yes, that must also help you, right? That emotional maturity and being, aware of people around you. That must really help you in your craft. Yes, 100%. So I'll tell you one incident also. So Rekha ma'am, the legendary Rekha ma'am. Wow. So what happened? Rani ma'am, some personal, boy or someone just called me and said कि please यहाँ पे आ जाओ, गोपी सर भी बैठे, रानी मैम भी बैठे, and they are calling you. So I went there. यशराज में ही only. तो वहां पे थिएटर में फिल्म चल रही थी और मुझे गोपी सर ने कहा कि जैसे ही ये थिएटर ओपन हो, वहां पे अंदर एक लेजेंड है, वो जो फिल्म देख रहे हैं वो बाहर आए तो उनके पैर पड़ लेना, रानी मैम भी उनके फैन है। मैंने सोचा अब ये कौन पर्सनालिटी है जिनके रानी मैम भी फैन है। अब मैं वेट कर रहा था और धीरे से दरवाजा खुला और देखा मैंने कि वहां से रेखा मैम बाहर आ रहे हैं और उनके आंखों में आंसू थे, वो रो रहे थे फिल्म देखने के बाद, वो इतने इमोशनल हो गए थे। रानी मैम ने उनके साथ गए, थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड किया और फिर हमारे पास आए और रेखा मैम ने ये बात नोटिस की और उन्होंने कहा कि आपका परफॉर्मेंस देख के समझ में आता है कि आपने लाइफ में क्या कुछ देखा है, क्या एक्सपीरियंस किया है। तो मुझे ये बात भी समझ में आती है कि मैं अपने एज में 27 इयर्स से ज्यादा एक्सपीरियंस के काम को कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं वही पोर्ट्रे करूंगा जो मैंने देखा है। इसीलिए मैंने मेरे कुछ काम आपको मैच्योर इसीलिए शायद लगते होंगे, कुछ रिएक्शन मैच्योर इसीलिए लगते होंगे क्योंकि मैंने छोटी उम्र में बहुत सारी अलग अलग चीजों को देख लिया है। मैंने छोटी उम्र में मेरे पापा को जाते हुए देखा, मेरी मम्मी को देखा जो अकेले घर संभालते थे, और मैंने अपने भाई बहनों को बड़े होते हुए देखा, मैंने खुद ने फेलियर देखे, मैंने खुद ने छोटी उम्र में काम करना शुरू किया, मैंने अच्छा नाम होते हुए देखा, मैंने ये भी देखा कि मेरे पास काम नहीं है, पैसे की प्रॉब्लम भी देखी, अच्छा फाइनेंशियली गुड भी समय देखा। तो ये सारे एक्सपीरियंस की वजह से ही मैं कहीं ना कहीं अपना काम अच्छे से कर पाता हूँ। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली एक एक्टर को हेल्प करती है। तो कोई भी मैं कैरेक्टर करता हूँ, ये सिर्फ वो कैरेक्टर के लिए जो हम प्रिपेयर करते हैं, इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू दैट, इट्स अबाउट योर 27 इयर्स ऑफ एज। और जो कुछ एक्टर्स हैं जितने एज ज्यादा होती है उतना ज्यादा मैच्योर परफॉर्म करते हैं, उतना ज्यादा ठहराव के साथ परफॉर्म करते हैं। वाई? क्योंकि उनकी वो एज उनको सिखा रही है कि हम बहुत एक्साइटेड, आप देखना जो भी यंग एक्टर्स है बहुत एक्साइटेडली परफॉर्म करते, बहुत एक्साइटेड होते हैं अपने परफॉर्मेंस के पहले, और कुछ सीनियर एक्टर्स बहुत काम परफॉर्म करते हैं। वाई? ये उनका एज और ये उनका एक्सपीरियंस उनको बताता है। That is so true. It's funny. I was watching Rockstar and उसमें से एक डायलॉग था कि टूटे हुए दिल से संगीत निकलता है, और I feel like actually acting में ना, like you said, वो बहुत जरूरी होता है। I feel like you have to be थोड़ा सा like आपको पेन से अनुभव होना बहुत बहुत जरूरी होता है। I think as an actor to get that craft, you've had to witness some kind of emotional
vulnerability, I feel, for you Hmm. to explore the whole spectrum of life and the characters you play. So I guess it's just following up on what you said, right? Like that's really important as well, isn't it? To witness the dark side of life too. हाँ, I personally feel ये मैंने खुद से ही तोड़ निकाला था कि the more you are sensitive, the more better actor you are. This is what I personally feel, because एक एक जब हमें पता है कि ये स्क्रिप्ट है, ये कुछ भी रियलिटी नहीं है, ये एक फिक्शन स्क्रिप्ट लिखी हुई आपके सामने है, और आप उसको रियल बिलीव करके आपका अप्रोच ये रख के कि हाँ ये रियल है और ये रियलिटी में ये सारी चीजें हुई है। अगर Hmm. ये आपको नकली चीजों को असली बिलीव करना है तो आपको रियल लाइफ में कितना सेंसिटिव होना पड़ेगा कि Hmm. आप उन सारी चीजों को भी परफॉर्म कर सके। हम बहुत ज्यादा एक्टर्स बहुत इमोशनल भी होते हैं, बहुत सारे एक्टर्स जो कि हमेशा हेल्प नहीं करता है, और बहुत ज्यादा इमोशनल रहना, कभी कभी प्रैक्टिकलिटी भी बहुत जरूरी है। बट Right. कहीं भी मैं रास्ते से गुजरता हूँ, कुछ ऐसा ऐसा कुछ सीन देख लिया रास्ते पे होते हुए जो मुझे डिस्टर्ब कर दे, हम लोग पूरे उन उन उस पर्सन के बारे में मैं सोचता रहता हूँ। मुझे मुझे बहुत दुख होने लगता है। मैं अगर कोई कोई एनिमल को भी रास्ते में देखता हूँ जो पड़ा है, तो मुझे बहुत दुख होता है। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजों को देख के भी अगर दुख होता है, तब जाके आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी निकलती है, क्योंकि आप तब जाके नकली चीजों को असली तरीके से परफॉर्म करते हो। Hmm. Yeah, that's so true. या That's so true. I think on a final note, Vishal, हम्म I think because of human, हम काफी उतावले हो चुके हैं आपको और देखने के लिए, and because it's been like what, a 2-year wait since we've seen you या on या screen, since Mardani. What have you got? Is there anything else that we can look forward to from you in terms of upcoming projects? So I will share the information whatever I can. So I am working with a lot of good directors, very well-known directors, very well-known actors, DOPs, and a very good cast with very very nice subject which I have not done before. और ऐसे कुछ रोल कर रहा हूँ मैं जो मैंने पहले नहीं किए हैं, और मैं Hmm. ऐसा भी कुछ काम कर रहा हूँ जो मैंने पहले किया है। जैसे कि मैंने कहा, मैं लोगों को वो भी देना चाह रहा हूँ कि जिसमें लोग मुझे देखना पसंद करते हैं। तो Hmm. इतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको फिलहाल के लिए दे सकता हूँ। बट आई एम श्योर कि ये उन सभी लोगों के साथ है जिन्हें आपने अब तक बहुत ज्यादा पसंद किया है। Oh और wow. आई होप, हाँ, और बहुत अच्छे नाम जुड़े हैं इन सारे प्रोजेक्ट्स के साथ। आई होप कि ये भी ऐसे ही वर्क करे जैसे मेरे लिए मर्दानी, ह्यूमन और टेलीविजन डेज वर्क किए, और मेरा ग्रोथ एज एन एक्टर और एज अ पर्सन भी जैसे हुआ है वैसा हो। डेफिनेटली, बस भगवान से बस यही प्रार्थना है कि बस हमें और आपका काम देखने को मिले और हम और भी इंटरव्यूज करते रहे आपके साथ। यस यस I यस। absolutely love our chats, Vishal. Honestly, it's truly special and it's truly wonderful. But honestly, it's great to see you on screen again, and it's just so wonderful to be in presence of yours. And can't wait for your next work. And congratulations on Human once again. Thank you so much. I didn't feel like it is an interview. I felt like it is just discussion about some productive things. So I am glad that you kept the interview very very light and very productive. Oh, thank you. Always, Vishal, always. Because, Thank craft you. से भी आगे मतलब बहुत सारी चीजें हैं, जिंदगी में. And I think it's very important to Hmm. address that. But I think it Yeah. can only work when you have someone like yourself who is able to respond well and, give that insight. So thank you so much for being so wonderful, as always. And I cannot wait to catch up with you again super soon. Very soon. Very soon. Yes. Chalo. All right, Thank you. Vishal. Thank Thank you. you so much. Thank you. Bye bye. Bye. Good luck. Bye.